15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोलापुर के जोड़ो भावीपेट स्थित इकरा इंग्लिश स्कूल, बागवान जमीयत और सोलापुर युवक संगठन की ओर से 15 अगस्त का कार्यक्रम बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि रंजीता चाकोते मैडम के हाथों ध्वजारोहण के साथ हुई। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों के रूप में मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी, हाजी मुश्ताक एमराउन, हाजी अयूब कल्याणी, हाजी इब्राहिम महिंदरगीकर और हाजी रशीद बाबा उपस्थित थे। कुल की प्राचार्य मर्जिना पांगल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, प्रेरणादायक भाषण दिए और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सभी का मन मोह लिया। छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा धारण कर देशभक्ति का संदेश दिया। उनकी आकर्षक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोड़ोभावी शाखा के सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षकों की मेहनत और मार्गदर्शन के कारण विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की सराहना की तथा बच्चों को एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। तो हमारे प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स थे। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एक पेट्रियोटिक सॉन्ग परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। A great leader. He was known as Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. He was the first Lord Minister of India. Maria Mustafa Qazi. I am Begum Hasan Mahal. Begum Hasan Mahal was the freedom fighter of India who played a major role during first hour of independence. 1857 to 58. She was also known as Begum of Jai Hind. Thank you. Jazakallah khair. Good morning everyone. My name is Rena Shaibulu. Today is 15 August. I wish you all very happy Independence Day. Jazakallah khair. My name is Aisha Ahmed Jagidar from 4th standard. Respected teachers and my dear friends, today we celebrate 15th August Independence Day of our country India. First of all, Alhamdulillah, we thank Allah for giving us freedom and for making us citizens of this great nation. Our country became free in 1947 because of the sacrifices of many freedom fighters, including many Muslim leaders like Maulana Abdul Kalam Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, and countless others who love this country. Islam teaches us to love our country. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, said, we should be loyal and honest to the place we live in. Our triangular flag teaches us peace, truth, and prosperity. As Muslim and as Indian, our duty is to study well, respect everyone, help the poor, and keep our country united. Let us make dua for the progress of India and for the safety of all its people. Jazakallah khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Haja Jazeel Beg from class 10. Before I begin, I want you all to imagine something. Imagine a child standing outside the classroom, not because he didn't want to study, but because the society decided he didn't deserve to. Now imagine a same child growing up drafting the constitution of the world's largest assembly. That child was Dr. B.R. Ambedkar. We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil, we the people of India. So today, standing here, I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by vision. A vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. An India where people from different regions, different backgrounds, different languages come together not just to compete, but to contribute. Not just to coexist, but to stand for something larger than themselves. At the
सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। डाइस पर मौजूद सभी हमारे मोहतरम और मुअक्किर शख्सियात, सबका नाम लूँगा तो वक्त मज़ीद जो है बढ़ जाएगा। आज के इकरा इंटरनेशनल अरबिक स्कूल इस्लामिक स्कूल की इस 15 अगस्त यौम आज़ादी के प्रोग्राम में शिरकत का मुझे मौका मिला। यहाँ पर हाजिर होकर मुझे बड़ी खुशी और मसरत हुई, खुसूसन बच्चों का जो प्रोग्राम मैंने देखा अपनी आँखों से कि हमारे जंग आज़ादी में जितने लोगों ने शिरकत की तकरीबन सबके लिबास, सबके कहना चाहिए प्रोटोकॉल करके यहाँ पर इस बात का मुजाहरा करने की कोशिश की गई कि यकीनन हम वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन हमारे जो है दिल में रचा बसा है, इसकी तामीर, इसकी तरक्की, इसका विकास और इसके कामयाबी के लिए हम हमेशा कोशां हैं और जस्तजू कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। और साथ ही ये पैगाम भी यहाँ से जाता है कि जो है हम तमाम लोग यानी बिला तफरीक मजहब व मसलक के हम भारत देश के विकास में लगे हुए हैं। जैसा कि एक तालिब इल्म ने इकरा स्कूल के कहा, अल्लामा इकबाल के इस शेर को पढ़ते हुए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। तो इस तरीके से इस बात को वाजे करता है, ये बात दर्शाता है कि आज नफरत, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, मसावात को दरकिनार करके जो हिंदुस्तान की फिजा बनाई जा रही है, अल्लाह करे उसे कामयाबी न मिले। और जिस तरीके से हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे असलाफ इकराम ने भारत देश के लिए बिला तफरीक मजहब के इसकी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें लड़ी, उनके खिलाफ बहुत सारे जो है उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की। तो उनको हम बरलाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को आपस में उल्फत मोहब्बत और भाईचारे से रहना बहुत ज़रूरी है। तभी इस वतन का विकास हो सकता है, कभी इस भारत देश तरक्की कर सकता है, वरना कभी भी ये तरक्की नहीं करेगा। अगर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव रहेगा तो समझ लीजिए कि हम लोग ये करके, ये इंसान की दो आंखें हैं, ये दोनों आंखों में से अगर एक आंख भी फूट जाए तो ये चेहरा बदनुमा और धब्बा नजर आएगा। तो गोया हिंदू और मुसलमान इस भारत देश की दो आंखें हैं, इसको कोई भी दागदार नहीं कर सकता और न करना चाहिए। मैं एक वाकया सुना के बाद खत्म करूंगा, मुझे फोन मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि मुसलमानों के बारे में हमेशा ये बात बाआवर कराई जाती है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं एक वाकया सुनाता हूँ इंतहाई मुख्तसर अंदाज में। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ये हमारे भारत देश का फ्यूचर है, हमारे भारत देश का मुस्तकबिल है। इनको तारीख बताना और तारीख से इनको जोड़ना हमारा दीनी, ईमानी और अखलाकी फरीजा है। आपको मालूम होना चाहिए इस भारत देश के सबसे नुमाया हीरो महात्मा बापूजी गांधी हैं। महात्मा बापूजी गांधी का दौरा बिहार में हुआ तो वहां पर पटक मियाँ थे, पटक मियाँ बहुत बड़े जो है बावर्ची थे, बहुत बड़े खाना पकाने वाले थे। चुनांचा अंग्रेजों ने देखा कि पटक मियाँ के यहाँ पर महात्मा बापूजी गांधी मेहमान बन रहे हैं। उन्होंने पटक मियाँ को अकेले बुलाया और बुलाकर ये कहा कि पटक मियाँ, आज शाम का खाना गांधी जी का आपके यहाँ पर है, लिहाजा आप चुपके से खाने में जहर मिला देना, ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। पटक मियाँ ने कहा ठीक है। अब अंग्रेज थे, अंग्रेज का नाम सुनते तो उस जमाने में लोग थर कांपते थे, तो कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद पटक मियाँ ने वतन से वफादारी के तौर पर गांधी जी को जहर नहीं दिया, पूरे अच्छे तरीके से खाना खिलाया, रुखसत किया। उसके बाद गांधी जी सुबह उठे तो अंग्रेज हक्का बक्का रह गया, देखता रह गया, अरे गांधी जी तो जिंदा है। तो उस वक्त जो उन्होंने पटक मियाँ को बुलाकर बहुत सारी सजाएं दी, बहुत तकलीफें दी, बहुत इज़ाएं दी, लेकिन पटक मियाँ की ये हिंदुस्तान के साथ वफादारी थी, गांधी जी के साथ वफादारी थी। उन्होंने अपने आप को, अपने घर वालों को दांव पे लगाया, हाँ अपना घर बर्बाद किया, लेकिन उन्होंने हरगिज जो है अंग्रेजों के साथ मुसालियत नहीं की, मुनाफिकत नहीं की हिंदुस्तान के साथ। ये एक मिसाल है, ऐसी हजारों
वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। इसी पर सर्वप्रथम माझ्या सर्व जोडगावी पेठ परिसरातले नागरिक, छोटी लहान मुलं, त्यांचे पॅरेंट्स, व्यासपीठावरती असलेले आपल्या प्रिन्सिपल मॅडम, आयुक्तजी, तस्नीमजी, चाचा, सगळ्यांमध्ये आज पहिल्यांदा येताना खूप आनंद होत आहे। आजच्या ह्या गौरवशाली अशा स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वप्रथम तुम्हाला सगळ्यांना मी शुभेच्छा देते। आज मला मनोभावी आनंद होत आहे की इतके वर्ष या रस्त्यावर जात असताना नेहमी माझी नजर वळते आणि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल आपल्या परिसरात चालतं, पण मला त्याचं काही माहिती नव्हती, जी मला आज प्रसंग मिळाला। इतकी छान ही मुलं सगळी तयार होऊन आलेली आहेत, नक्कीच कुठल्या तरी कॉम्पिटिशन आहेत, त्यांना खूप वेळ बसवलेला आहे, मला यायला थोडा वेळ झाला, त्याबद्दल सर्वप्रथम मी क्षमस्व आहे। पण आजची ही सकाळ, आजचा हा दिवस आपण खूप स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाने, त्यांच्या त्यागाने बघत आहोत आणि आजची आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की आपण भविष्यात या लहान मुलांना चांगलं शिक्षण, चांगलं तंत्रज्ञान, चांगलं आयुष्य पुढचं देणं, चांगला मजबूत भारत त्यांना देणं आपली जबाबदारी आहे। आज आपण जे पाया रोवणार आहोत त्याच्यावरती या लहान मुलांचं पुढचं भविष्य आहे, तर कुठल्याही गोष्टींचा भेदभाव, भाषा सगळ्याचं न करता एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत याची आपण सगळ्यांनी शपथ घ्यावी असं मला या प्रसंगी वाटतं। आणि इतका चांगला कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, तुम्ही मला इथे बोलवलात, वेळेची कमतरता आहे, लहान मुलांनी खूप वाट पाहिलेली आहे, पण या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांमध्ये येण्याचं माझं भाग्य लाभलं। चाकोते परिवार नेहमीच तुमच्या सेवेत आहे, मीही नेहमी 24 तास तुमच्या एका हाकेवरती आहे। कुठलीही माझ्यासाठी असलेली जबाबदारी, काही या शाळेची समस्या ही पहिली माझ्यापर्यंत यावी, महानगरपालिकेच्या द्वारे मी तुमच्या सर्वांच्या सेवेत तत्पर आहे अशी ग्वाही देते आणि इथे बोलवल्याबद्दल सर्व आयोजकांचे मनपूर्वक आभार मानते। इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या सर्व मुलांना माझी विनंती आहे, आता त्यांची मनस्थिती नाही काही ऐकण्याची, त्यांचं आता ते कॉम्पिटिशन मध्ये माइंडसेट आहे, पण यांना खरंच मी आता मॅडमना विचारलं की किती क्लासेस आहेत आणि काय काय चालतं, तर त्यांनी मला सांगितलं 12 वर्ष ही शाळा कार्यरत आहे, तर इथून नक्कीच सोलापूरचे भविष्यातले सगळे छान मुलं पुढे जाऊन नक्कीच त्यांचे नाव लौकिक करतील अशी आशा करते। तुमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देते, इथे बोलवल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थँक्यू, धन्यवाद।